Hello viewers, I am Rajkumar Soni. I welcome you all in my channel Military Academy. Viewers, in this video we shall solve English paper of NDA and NA1 examination of 2019. Yes, and this video and this paper will be very much helpful for your upcoming exam which is going to happen on 6 September 20 and all officers level and IBPS lower level exams also. Description, we all know solution of a previous English paper of NDA NA1 will be very beneficial for cracking its upcoming exam. We shall understand types of question, important parts to cover, etc. Additionally, I have already uploaded NDA NA1 2 paper. Okay, the solution of NDA NA1 2 paper in English medium, in English language uh, uh, recently. And you can see that video also, and the link of that video I shall mention in description box. So about me, I am an instructor of competitive English, academic English, group discussion and physical fitness. My career history from 2004 to 2019 Navy, teaching experience, I imparted instruction in the Navy too. And after retirement, I have one academy, military academy, which is in Balia, Uttar Pradesh. Viewers, why am I remarkable? Gentlemen, why am I making this video? Because I am an educator of an academy also. And I have earned certificate of advanced English level C1, which is the second highest level of certificate of English proficiency. Additionally, I have earned upper immediate level B2 certificate from British Council, which is the third highest certificate of English proficiency. So let's come to the topic. See, my source of information, the intention of sharing this information is that from where you can get or download the previous year's question paper. So if you visit UPSC website, you'll find this is main page, and on this main page, just click exam. After about us, there is one tab exam. So if you click exam, one this scroll down will come up. Okay, and you can click previous year's question paper, that is previous question paper. The moment when you click this, you will find this part, previous year's question paper, and you have to scroll it down. And when you scroll it down, so when you scroll down, you will find NDA and NA exam 1. Yes, this is 1 2019. You need to go to at page number 2. There you can download general ability test, that is GAT, and in this paper you will have English paper and mathematics. So let's start. This is set A. So spotting error in part A. Spotting errors is the directions. Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled A, B, and C. Yes, every 3 parts are there labeled as, labeled means named, A, B, and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B, or C. It means if you are finding any error in this part, then you can mention corresponding letter. That is, if you are finding error here, you can go for the option A. If you're finding error here, you can go for the B, and same way with the C also. And in case if you feel that there is no error, sentence is grammatically correct, okay, so you can go for the option D, that is no error. So our first question, opening his letters, reading them carefully, and sending for his clerk, he dictated answers with them. Okay, opening his letters, no error. Reading them carefully and sending for. Send for means calling. Yes, send for means it's not about sending. It's phrasal verb. Send for means calling. So what he did, he called his clerk and then he dictated answers with them. What do you mean by dictated? Dictated means say or read loudly to someone so that he could type. Normally this is used for the official purpose. So when you are an officer, you are telling something loudly or clearly so that your staff could type it, then that means you are dictating. So what he did, he dictated answers with them. So viewers, error is here, dictated to them, not with them. Okay, so dictated answers to them, here to is required. So C is correct answer. Next, he was my school friend, but becoming a great man, he has grown
proud enough to forget his old friends. Okay, so if you see, error is having part B because after becoming a great man, okay, he was my school friend, वह मेरा दोस्त था, लेकिन यहाँ पे लेकिन मेरे ग्रेट मैन बनने के बाद आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड. वो इतना घमंडी हो गया है, इतना प्राउडी हो गया है कि अपने पुराने दोस्तों को ही हैज फॉरगॉटन. Okay, so after is missing here, so you need to put after. So error is having part B. Next, Rabindranath Tagore, a Nobel laureate and the author of the national anthem, found Shanti Niketan. Yes, we all know Rabindranath Tagore. Comma is there, find, there is no error. This is called case in noun in apposition. Okay, there is a noun and in apposition some details are there that Rabindranath Tagore, a Nobel laureate, he got Nobel Prize. Okay, and the author of the national anthem. Okay, this phrase is called noun in apposition. Okay, case in apposition. So found Shanti Niketan, since Shanti Niketan was it was founded a long time ago, so it requires to be in past tense and it needs here V2, that is founded, not found. Okay, and just don't get confused, there are two words. First we are talking about found, that means to establish, स्थापना करना. Okay, उन्होंने क्या किया, स्थापना किया. And here, so found is V1, founded and founded. Okay, both are V2 and V3. So what we need here, V2. And there is one more word, find means pana, yeah, search karna. So find is V1, found is V2 and found is V3. Okay, so found, founded and find, found and found. Okay. Next, the art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent. Okay, the art of printing was introduced into England. There is no requirement of putting into, because you are not, there is no sense of moment here. Normally into is put for showing momentum. Okay, so introduced in England, that is more than enough. England is a country, so you put in. Okay, सो द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस. इंग्लैंड में क्या हुआ, प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग की कला है वो इंट्रोड्यूस किया गया. वो एडवर्ड फोर जो है उनके शासनकाल में इनके द्वारा किया गया. और ये जो साहब हैं क्या है, अ नेटिव ऑफ केंट हैं. ओके. Next, from 30 years, he devoted himself to public affairs, okay, without taking a holiday. Okay, वो बहुत devoted है भाई, समर्पित है. वो क्या किए, he devoted himself to public affairs. So, without taking a money. So, यहाँ पे जो from 30 years है, वो part A में error है. यहाँ पे आप क्या करेंगे, for 30 years. Okay, so this is error. For 30 years, he devoted himself to public affairs without taking a holiday. We all know for indefinite time we put for, and for definite time we put since. Okay. Next, if Ramesh will be promoted, he will get a higher salary. Very good question. So normally this is related with if clause, and we all know if clause should be in present indefinite and main clause should be in future indefinite. Okay, normally. So if Ramesh will be promoted, so part A is having error. So if Ramesh is promoted, okay, if Ramesh is promoted, present tense, simple present, present indefinite tense, he will get a higher salary. Okay, not will be promoted. Next, my brother goes to the office 5-day week. It's very easy. My brother goes to the office 5 days a week. Okay, fine, 5 days a week, not 5 days a week, day a week. Next, if you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never you will get it back. Okay, so if you see, part C is having error, and you will never get it back, and never you will get it back. This is incorrect. The position of adverb, we all know never is an adverb, and adverb, this never is put between auxiliary and main verb. So this never should come here between auxiliary and main verb. This is auxiliary, this is main verb. So, and you will never get it back. Fine. For one more example, she will never go to office on time. Will, never, never, adverb is position between auxiliary and main verb. Next, one of most widely spread bad habits is the use of tobacco. Yes, we all know that what problem India is facing presently is
द प्रॉब्लम ऑफ टोबैको ऑल्सो, ओके, नशा जो है, धूम्रपान, स्मोकिंग, ओके, नशेबाजी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड, वी ऑल नो वन ऑफ द मोस्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मोस्ट इज व्हाट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच, एंड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी शुड पुट द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ओके। Next, a great part of Arabia is desert. Very good. So a great part, okay, a great part means a major part, बड़ा part, कोई problem नहीं है. Of Arabia, Arabia is a area and which is desert, okay. So there is no error in this sentence. A great part of Arabia is desert. Now let's move to synonyms part. So directions, each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. So a sentence will be there. There is one word which is underlined and you are having 4 options. So select the option that is nearest in meaning. So you have to select one option, okay, which is nearest meaning to this word, and mark your response accordingly. Fine. Let's read. Some people complain when they encounter a small fortune in the course of their thoroughly happy life. So some people complain. कुछ लोग क्या करते हैं? Complain करते हैं when they encounter. Encounter means अकस्मात मिलना, अचानक मिलना, प्रॉब्लम फेस करना। और स्मॉल मिस फॉर्च्यून, जब उनको छोटी सी कुछ दुर्भाग्य से या खराब किस्मत से मुलाकात होता है, मतलब किस्मत थोड़ा खराब हो जाता है। इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरोली हैप्पी लाइफ। सो क्या होता है, उनका लाइफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब अपने खुशी जीवन में, बढ़िया वाले जीवन में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या करते हैं वो लोग? कंप्लेन करने लगते हैं। सो इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? रन इनटू। रन इनटू माने कोई अचानक किसी से मिलना, प्रॉब्लम में पड़ना। रन अवे क्या है? एस्केप। रन अवे का मतलब होता है एस्केप, भाग जाना, ओके। फ्ली बेसिकली जिसको आप बोलते हैं। रन डाउन का मतलब कम करना, रन डाउन है ना, रिड्यूस। एंड रन विथ का मतलब होता है कंट्रोल करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रन इनटू। ये मैंने आपके लिए ये पिक्चर भी ये किया है एक तरह से। बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि ये मिस फॉर्च्यून को दिखाने के लिए एक तरह से वो है। नेक्स्ट, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। यस, मिजरीज का मतलब होता है कष्ट, ओके। तो जो दुनिया है, गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि दुनिया जो है कष्टों से भरा हुआ है, ओके। सो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। मिजरीज मतलब कष्ट। इनडिफरेंट लव का मतलब क्या होगा? इनडिफरेंट मतलब उदासीन लव। उदासीन मतलब ये थे, मतलब नहीं है ज्यादा, एकदम न्यूट्रल टाइप का, इनडिफरेंट। परफेक्ट हैप्पीनेस, ओके। परफेक्ट हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ? एकदम पूर्ण खुशी। और ग्रेट सफरिंग इज कॉल्ड मिजरिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मॉडरेट सिंपैथीज। मॉडरेट का मतलब क्या है? नॉर्मल सिंपैथी, दया होना, सहानुभूति होना। सो दुनिया कष्टों से भरी है, इसका मतलब दुनिया ग्रेट सफरिंग से भरी है। नेक्स्ट, अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। यस, एक खूबसूरत चीज पे एक हल्की सी झलक, एक ग्लांस जब होता है तो हमको डिलाइट देता है, खुशियां देता है। सो डिलाइट मतलब खुशियां। विजडम मतलब बुद्धि, मता हमको समझदारी आती है, नहीं। बी करेक्ट ऑप्शन। हैप्पीनेस आती है, न कि प्यूरिटी, शुद्धता और शांति नहीं आती है। क्या आती है? हमें हैप्पीनेस आती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। जी हाँ, बहुत भयानक होता है जब आप स्टारवेशन के थ्रू मरते हैं, भयानक, ओके। जब लोग भूखमरी से मरते हैं। सो स्टारवेशन का मतलब है यहाँ पे भूखमरी, ओके। सो स्टार्च गलत है, स्टेपल गलत है, प्लेंटी गलत है। हंगर का मतलब होता है भूख। तो यह स्टारवेशन मतलब भूख की, ये भोजन की कमी, और हंगर से कोई मरता है तो उसको स्टारवेशन बोलते हैं। Next, the university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter. बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, एक शिकायत सुनने के लिए, सॉल्व करने के लिए कमिटी बनाई है ताकि वो मामले की जांच कर सके। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, फ्रेजल वर्ब है। सो ग्रीवेंस हमारा वर्ड है। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, कंप्लेन। डिप्रेशन गलत है, कंप्लेन सही है। एब्रेजन गलत है, ग्रेटफुलनेस आभार व्यक्त करना गलत है, ओके। नेक्स्ट, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। जी हाँ, स्लैंडरस यहाँ पे जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, कड़वा स्पीच है ना, एब्यूजिव स्पीच। सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। प्रेजवर्दी का मतलब होता है तारीफ, मॉडरेट का मतलब नम्र, इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक। सो ये तीनों गलत हैं। एब्यूजिव यहाँ पे करेक्ट है, माने कठोर टाइप का, कड़वा टाइप का, तीखा टाइप का, अभद्र टाइप का, एब्यूजिव, ओके। स्लैंडरस, एब्यूजिव सिनोनिम है।
नेक्स्ट, सडनली द स्काई वॉज darkened बाय अ gigantic बर्ड। ओके, gigantic का मतलब होता है बड़ा, विशाल, जैसे ये विशाल है एक तरह से। मैंने तस्वीरों के सामने आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। gigantic, सो सडनली क्या हुआ, स्काई जो है वो बड़े बड़े पक्षियों से अंधेरा ग्रस्त हो गया ना, डार्क हो गया। सो विंग्ड का मतलब होता है पंख वाला, स्मॉल छोटा, टाइनी भी छोटा, इनॉर्मस यहाँ पे करेक्ट वर्ड है यहाँ पे। ओके, gigantic का सिनोनिम। Next, to abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization. बेसिकली abolish का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, eradicate एक्चुअली वर्ड है यहाँ पे। सो गरीबी को समाप्त करना क्या होगा, उस मिट्टी को समाप्त करना होगा जो मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या करता है, वो वर्चूज, वो गुण पैदा करता है या अनुकूल होता है हायर सिविलाइजेशन के लिए। ये किस सेंस में कहा गया है वो दूसरा बात है। एबोलिश का मतलब यह है समाप्त करना, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, नर्चर पोषण करना, एसिमिलेट इकट्ठा करना, इरेडिकेट इज करेक्ट वर्ड। Next, the Arabs who are not in the cities live in the desert throughout the year, shifting from one oasis to another. So यहाँ पे oasis एक वर्ड है। oasis क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो फर्टाइल स्पॉट है, जहाँ रेगिस्तान में आपको थोड़ी बहुत पानी, जंगल, झाड़ मिल जाए। सो यहाँ पे सेंटेंस ये है, द अरब्स, कुछ अरब्स लोग ऐसे हैं जो सिटीज में नहीं रहते, वो क्या करते हैं, एक, और वो डेजर्ट में रहते हैं, वो एक साल में एक जगह से, एक ओएसिस से दूसरी जगह में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ओएसिस क्या है, एक फर्टाइल जगह से, एक बढ़िया जगह से दूसरे बढ़िया जगह पे पानी की खोज में, जंगल की खोज में, हवा की खोज में घूमते रहते हैं। सो यहाँ पे ओएसिस, सैंडबैंक गलत है, माउंट गलत है, ड्यून गलत है, स्प्रिंग इज एग्जैक्ट वर्ड। सो स्प्रिंग और ओएसिस का मतलब हुआ एक ऐसा जगह जहां पे रेगिस्तान में, एक ऐसा फर्टाइल जगह जो फर्टाइल हो, वहां पे पानी और थोड़ी सी रहने की सुविधाएं मिल जाए। नेक्स्ट, द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। वेरियस का मतलब बहुत सिंपल है, भिन्न भिन्न तरह के। ओके, अब फेसेट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो ये बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न तरह के जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैं, भिन्न भिन्न तरह के जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं बेसिकली लाइफ के, वो लार्ज सिटी में आपके देखे जा सकते हैं, रिफ्लेक्ट होता है। सो वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, सेवरल यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है। सिमिलर का मतलब समान, वैल्यूएबल, कीमती, सिंगुलर एक वचन जो भी है ना, एक नहीं। तो यहाँ पे वेरियस का है सेवरल। एंटोनिम्स के ऊपर आएंगे, अभी तक हमने सिनोनिम्स किया। सो ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word. Same way as we did a synonym, we are having one sentence, one part, a group of words are underlined, and we have to find suitable opposite out of these 4 options. Let's start. Ramesh is very dubious character. So dubious means doubtful. And what will be the opposite of doubtful? It is option C, trustworthy, not shady. Shady, suspicious, and doubtful. These are all synonym. This part, and this part all are synonym, and that is doubtful. Trustworthy is opposite of dubious, doubtful, shady, suspicious, etc. Next, do not indulge in unmindful activities. What is unmindful? Which is without mind. Okay, so unmindful, vigilant is correct. Opposite here, careless is again without mind. Stupid is again without mind. Fatuous is again without mind. That is stupid. So if you see, sometimes to confuse candidates, what they do, they give one correct option, and rest option will be either antonym or all synonym. Okay. नेक्स्ट, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल डिजीज। क्यूरेबल मीन्स दैट कैन बी क्योर्ड, जिसकी इलाज हो सके। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनल का मतलब होता है जिसका इलाज नहीं हो सकता। रेमिडिएबल जिसका इलाज हो जाए, ट्रीटेबल जिसका इलाज हो जाए, ऑपरेबल जिसका इलाज हो जाए। सो हियर वी नीड अपोजिट, दैट इज ऑप्शन सी, टर्मिनल। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस हमने सुना है, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, हम बोलते भी हैं कि ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली एटसेट्रा। ओके, सो शुभ, शुभ का क्या होगा, अशुभ, इन ऑस्पिशियस। सो ऑमिनस यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, जो अपोजिट है ऑस्पिशियस का। ऑमिनस का मतलब इन ऑस्पिशियस। उसके अलावा प्रॉपिटियस, फॉर्चुनेट, ऑपरच्यून, ये सब सिनोनिम है ऑस्पिशियस के। ओके, सो ध्यान रखेंगे एक तरह से।
नेक्स्ट, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। सो उसके अंदर क्या है, बहुत गहरी हॉस्टिलिटी है, मतलब दुश्मनी है किसको, मोहन के लेके। हमने सुना है चाइना इंडिया हॉस्टिलिटी। सो यहाँ पे आप गौर करेंगे, डी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फ्रेंडशिप, दुश्मनी का फ्रेंडशिप अपोजिट हुआ। एनिमोसिटी, बेलिजरेंस, मैलिस, ये सब दुश्मनी के जो है सिनोनिम है। ओके, फ्रेंडशिप इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। ओके, हमने बोला भी है, कई बार समझाते भी हैं कि क्लास में जो आपकी स्पीच होनी चाहिए वो मोनोटोनस, डल नहीं होनी चाहिए। मोनो मतलब एक, टोन मने आवाज, एक ही तरह का आवाज रहेगा तो आपका मोनोटोनस बोलेंगे, डल बोलेंगे। सो हिज लाइफ क्या है, उसकी लाइफ डल है। सो यहाँ पे जो करेक्ट अपोजिट है दैट इज एक्साइटिंग है भाई, डल नहीं है। एंड ड्रियरी, टेडियस, अनइवेंटफुल, दिस आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ मोनोटोनस एंड डल। नेक्स्ट, मैकबेथ इज अ मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। जी हाँ, मैकबेथ का नाम आपने सुना है। मोरली, यह नैतिक रूप से रिपल्सिव, हेटफुल बेसिकली, जिससे आप नफरत करते हैं, है ना, पसंद नहीं करते हैं। ओके, जिसको आप रिपेल करते हैं। रिपेल एक वर्ड है जो आपको क्या करता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता, वो आप उसे दूर भागते हैं। रिपल्सिव कैरेक्टर। सो एबोमिनेबल का मतलब भी रिपल्सिव है, हेटफुल है। अट्रैक्टिव यहाँ पे करेक्ट अपोजिट है इसका। ऑब्नॉक्सियस एंड अगली, ये भी रिपल्सिव और डिटेस्टेबल का सिनोनिम है। सो यहाँ पे आपको रिपल्सिव के कुछ सिनोनिम मिले। रिपल्सिव हो गया, एबोमिनेबल हो गया, ऑब्नॉक्सियस हो गया, अगली हो गया, ये सब हेटफुल हो गया, डिटेस्टेबल हो गया, ये सब क्या है, नफरत, दूर करने लायक, पसंद करने लायक नहीं, है ना, आप जिनसे अट्रैक्टिव नहीं होते, आप दूर भागते हैं, वो सेंस है यहाँ पे, नफरत करते हैं। अट्रैक्टिव करेक्ट एंटोनिम है यहाँ पे। नेक्स्ट, द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। हम बोलते हैं कश्मीर की ब्यूटी बहुत पीसफुल होती है, काम होती है, उसी का एक वर्ड है सीरीन। जी हाँ, आपको एक बहुत अच्छा महसूस कराएगा। तो जो सीरीन का सिनोनिम होता है काम एंड पीसफुल, तो कश्मीर की जो सुंदरता है उसके ऊपर बहुत ही सूथिंग, माने एकदम आराम देने वाला, मन को शांति देने वाला, खुशियां देने वाला, सूथिंग इफेक्ट, राहत देने वाला इफेक्ट था। सो यहाँ पे हमको सीरीन का अपोजिट देखना है। सो सीरीन का शांति, पीसफुल हो गया, तो इसका जो अपोजिट है दैट इज टर्बुलेंट, डिस्टर्बेंस लेके आने वाला। और जो प्लासिड है, प्लीजिंग है, ट्रैंक्विल है, ये सब काम एंड पीसफुल के ही सिनोनिम है। सो यहाँ पे आपको काम, पीसफुल, सीरीन, प्लासिड, प्लीजिंग, ट्रैंक्विल, ये सब आपको शांति के लिए और माने शांत करने के लिए ये सब आपको वर्ड मिल गए। लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो टेम्पररी हो, थोड़े समय के लिए हो, एक तरह से बोलते हो शॉर्ट लिव्ड हो, बेसिकली कम समय के लिए। सो लाइफ क्या है भाई, प्रकृति में क्या है, कम समय के लिए शॉर्ट लिव्ड है। सो ब्रीफ जो है, मोमेंट्री जो है, शॉर्ट लिव्ड जो है, ये सब क्या हो गए आपके सिनोनिम हो गए। इसका जो करेक्ट एंटोनिम हुआ दैट इज इंटरनल, कि भाई अनंत काल तक रहेगा, शॉर्ट लिव्ड नहीं है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, इटर्नल है। ओके। नेक्स्ट, सोहन इज वेन पर्सन। वेन का मतलब ही घमंडी। ओके, और इसका जो अपोजिट होगा दैट इज मोडेस्ट, नम्र पर्सन है भाई, बात मानता है। ओके, एरोगेंट, कंसीटेड एंड प्राउड जो है, ये वेन के सब सिनोनिम हो गए। अब हम आते हैं idioms एंड phrases के ऊपर। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम idioms phrases followed by 4 alternative meanings to each. Choose the response A, B or C which is most appropriate. Same way, one idiom is given or phrase is given, and you have to select suitable option which is giving exact meaning or nearest meaning to this idiom. ओके, अ डार्क हॉर्स। ओके, बहुत फेमस स्टोरी है एक रेस में जो डार्क हॉर्स था, काले रंग का हॉर्स था, तो उसको उम्मीद नहीं थी जीतेगा वो, लेकिन वो रेस जीत गया। सो अ डार्क हॉर्स बोलते हैं, ये इडियम बन गया। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, अ पर्सन हु विंस अ रेस और कॉम्पिटिशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। जी हाँ, उम्मीद नहीं थी बट ही वन दैट रेस। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ शो स्टॉपर। हम हमेशा सुनते हैं, इवन फैशन मूवी में भी आपने शो स्टॉपर का नाम सुना होगा कि शो स्टॉपर कौन होता है, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, उसको बोलते हैं अ शो स्टॉपर। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके भाई, हर जगह पे ये जैक काम करेगा, इसका मतलब क्या है, एक आदमी जो है समवन हु हैज मेनी स्किल्स। जी हाँ, देख लीजिए, सोशल भी हैं, रिसर्चर भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, ओके, इंजन भी देख लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये राइटर भी हैं, बहुत सारा। सो अ पर्सन हु हैज मेनी स्किल्स, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट, फाइट
टूथ एंड नेल, फाइट करना मतलब लड़ाई करना, और टूथ एंड नेल का मतलब क्या हो गया कि भाई एकदम दांत और माने नाखून हर जगह से। इसका मतलब क्या है कि टू अटैक समवन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, जितना दम है, ताकत है, उसमें क्या करते हैं आप, पूरा ताकत झोंक देते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि जब बच्चे लड़ नहीं पाते तो क्या करते हैं, नोचने लगते हैं, काटने लगते हैं। तो मतलब क्या है, अटैक करना, किसके लिए, कैसे, विद लॉट ऑफ फोर्स, जितनी ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत से। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, कोई चीज फेयर भी है और स्क्वायर भी है, मतलब हर तरीके से बढ़िया है। सो ए इज बेटर, एक तरह से, इन एन ऑनेस्ट वे। यस, तो यदि आपने गौर किया कि साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर, सो यहाँ पे हमने बात किया कि भाई नॉलेज को मालूम नहीं है कैसे यूज करें, और यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है, साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डोंट यूज प्रॉपरली। सो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस लग रहा है कि हाँ, इसका कुछ रिलेशन है। सो हम देखते हैं कि एस से कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, बाकी ये दो को अभी फिलहाल के लिए गलत करते हैं। सो एस के बाद पी, पी क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन। अच्छी बात है भाई, पहले लाइन में इन्होंने बोला कि वी डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज, वी डोंट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, मालूम नहीं है नॉलेज के संग क्या करें। और दूसरा, साइंस ने हमें बहुत सारा सुपर पावर दे दिया है जिसको हम यूज करना नहीं जानते, और साथ में अब ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि भाई वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन। सो यहाँ पे ये भी सही है। उसके बाद वाला देख लेते हैं, आर, मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। मशीन का क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपर देखभाल होना चाहिए और इंतजार होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो बात आपकी मानने से इनकार कर देगा। ओके, एंड दे कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, वो विनाश भी लेके आ सकता है। आर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज क्यू, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन, और हमें क्या होता है, बिना मशीन के आज के समय में भी काम करने में तकलीफ होती है। सो यदि आप गौर करें, ये सीक्वेंस सबसे अच्छा बैठ रहा है, और इसका ऑप्शन ए ही है जो करेक्ट ऑप्शन है। एस आर पी क्यू यदि हम करते हैं तो साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डोंट नो। ओके, उसके बाद आर, मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। और आर के बाद यदि आप पी भी देखें, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू आर मैनेज, तो कोई रिलेशन नहीं है इसमें एक तरह से। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए है दैट इज एस पी आर क्यू, यदि आप सिंपल्स में पढ़ें, we don't know what to do with our knowledge, correct, science has given us superhuman powers which we don't use properly. For example, we are unable to manage our machines should be fed properly and waited upon attentively, otherwise they refuse to work or cause destruction, we already find it difficult to do without machine, and last, in the course of time they may rule over us altogether. So ये जो sequence है that is best, option A is correct answer. Next, the British rule in India has brought about moral, material, cultural, and spiritual renovation of दिस ग्रेट कंट्री। सो क्या हुआ, ब्रिटिश रूल ने क्या किया है भाई, देश में मोरल, नैतिक रूप से माने पदार्थ वाला जो मैटर के जो रूप में जो है चीजें, उसको भी नुकसान किया, हमारा सामान पूरा तहस नहस करना, हमारे कच्चे पदार्थ को लेके जाना, कल्चर, संस्कृति एंड स्पिरिचुअल, अध्यात्म को भी पूरा बर्बाद किया। सो इसके बाद वाला जो है वो हम पढ़ते हैं, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। सो यहाँ पे यही से वाक्य देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश रूल का बात हुआ और बोल रहे हैं कि मैं इस तरह के रूल को क्या हो, अभिशाप समझता हूं। तो इसका मतलब पी से एक वाक्य शुरू हो सकता है। दूसरे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेडिशन हैज बिकम, कोई सेंस ही नहीं है सेडिशन अभी डालने का। आर्स इज अ नॉन वायलेंट रीजन, ये भी सेंस नहीं है। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यस, एस से भी वाक्य शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसको बर्बाद करने की बोली जा रही है, रूल को, और यहाँ पर भी सिस्टम को। सो इसका मतलब पी से और एस से वाक्य शुरू हो सकते हैं। तो पी और एस से देखते हैं, एक ये ऑप्शन है, एस से, पी से एंड एस से, और बाकी इसको तो होगा नहीं। सो पी से दूसरा देखते हैं, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। सो पी के बाद जो एस वाला ऑप्शन है, एस, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये भी सही है। क्यू देखते हैं पहले। ओके, क्यू, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। ओके, जो सेडिशन का मतलब क्या होता है, देश विद्रोह, इसको हम बोलते हैं। तो इसका क्या है भाई कि ये मेरा रिलीजन, धर्म बन गया है। और आर क्या है, आई एम, आर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, और हमारा जो बैटल है, जो ये युद्ध है, क्या है, नॉन वायलेंट, अहिंसक है। और लास्ट में वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है पी एस क्यू आर, ये सबसे बढ़िया है। अब हम थोड़ा सा एस पी आर क्यू देख लेते हैं। क्या है कि ब्रिटिश रूल हुआ, उसके बाद आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, चलिए सही है। पी देखते हैं, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। तो सच कहें तो सबसे पहले इस रूल के बाद ये रूल आना चाहिए, इस रूल का। अभी सिस्टम बात किए फिर रूल बात कर रहे हैं, तो सही नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम जो है एस और से शुरू होने वाला एक गलत है। जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए दैट इज ऑप्शन बी, पी एस क्यू आर।
कि ब्रिटिश रूल हुआ और मैं इस रूल की निंदा करता हूं, और उसके बाद जो है बाकी जो लाइन है, तो यहाँ पे जब आप अरेंज करेंगे तो वो ऐसे कुछ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वी आर नॉट टू किल एनीबडी बट इट इज आवर धर्म, हमें किसी को मारना नहीं है, बट हमारा ये धर्म है टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। ब्लॉट मने होता है, ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाना। सो क्या है, हम ये चाहते हैं, किसी को मारना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है कि इस सरकार का, या वो जो सरकार जो चली गई, जो ब्रिटिश रूल थी, उसकी जो अभिशाप है उसको हम लोग क्या करें, मिटा दे, खत्म कर दें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम वर्ड्स को वो करेंगे, अरेंज करेंगे जम्बल्ड अप को। द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस अनआइडेंटिफाइड गनमैन एंड इंजोर्ड अनदर ड्यूरिंग शॉर्ट डेट टू वर्कर्स। सो जब आप अरेंज करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज QSRP। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। सो क्यू क्या है, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, क्या हुआ, जो बिना पहचान वाले अपरिचित जो हैं। गनमैन क्या है, बंदूकधारी, उन्होंने क्या किया, आए, ये साहब लोग आए। एस, शॉर्ट डेड, दो लोगों को मार दिया। आर, एंड इंजर्ड, इतने लोगों को घायल कर दिया। एंड बाद में क्या हुआ, द पी जो है ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, और इस इलेक्शन में। सो SQRP जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड टू वर्कर्स एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। ओके, सो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ। तो हमको क्या करना है, हमको तो सब्जेक्ट चाहिए। सो इसका मतलब क्यू से कोई वाक्य शुरू हो रहा है, दिस स्टेट हैज अ, एक सब्जेक्ट हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब, बाकी आगे सेंटेंस बढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सो यहाँ से वाक्य शुरू करते हैं, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ। क्यू से शुरू होने वाले ऑप्शन आपको एक ही है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये सही है। सो दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट ऑप्शन पी, both intense political and, okay, then followed by S, religious contestation and of syncretic accomplishments। so क्या देखा आपने, ये जो स्टेट है उसका इतिहास रहा है बोथ, दोनों, इंटेंस, गहरा, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंटेस्टेशन का। ओके, आपस में जो मतभेद हैं, जो आंदोलन है, जो कॉन्टेस्ट होता है, प्रतियोगिता, उस टाइप का चीजें हमेशा रहा है, पॉलिटिकल भी रहा है, रिलीजियस भी रहा है। एंड ऑफ सिंक्रेटिक, सिंक्रेटिक का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, और एकम्प्लिसमेंट, तो सब कुछ हुआ, इंटेंस पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्टेस्ट भी हुआ, और बाद में क्या हुआ, ऑफ सिंक्रेटिक एकम्प्लिसमेंट, और एक सामंजस्य बड़ा काम भी हो गया। एकम्प्लिसमेंट माने काम, चीजें, रिजल्ट बेसिकली। सो यहाँ पे आप गौर करें, QPSR इज करेक्ट सीक्वेंस, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड ऑफ सिंक्रेटिक एकम्प्लिसमेंट, एकदम सुटेबल लाइन। नेक्स्ट, द फादर ऑल्सो इन हिज क्वेस्ट फॉर हिज जस्टिस बाय द सिस्टम फील्स लेट डाउन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, PSRQ। पी, द फादर ऑल्सो, एस, फील्स लेट डाउन, पिताजी भी महसूस करते हैं क्या, आर, बाय द सिस्टम, लेट डाउन भाई उनको दबा दिया गया है ना, वो उनको बहुत बुरा फील हो रहा है, अजीब फील हो रहा है। ओके, व्हाट, बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर हिज जस्टिस, उनके न्याय पाने की जो चाह है, जो प्यास है, उस चक्कर में। इवन सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके फैमिली मेंबर्स को क्या हो रहा है, दे इधर रिप्लेस कर सकते हैं, दे फील लेट डाउन बाय द सिस्टम इन दियर क्वेस्ट फॉर जस्टिस। सो PSRQ, सो पी से ये ऑप्शन जो है PSRQ, यही बेस्ट ऑप्शन है। द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन रिलीजियस कॉन्टेस्टेशन एंड ऑफ सिंक्रेटिक अकॉम्प्लिसमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सो ये इट वाज आफ्टर द एडवेंट, एडवेंट का मतलब चलन, प्रचलन, रेलवेज, रेलवेज के चलने के बाद, दैट वी बिगिन टू बिलीव इन डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंसेस। सो रेलवे के चलने के बाद हमने क्या हुआ, वो जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंसेज है, उसको महसूस किया। एंड यू आर एट लिबर्टी नाउ टू से दैट इट इज थ्रू द रेलवेज दैट वी आर बिगिनिंग टू एबोलिश दोज डिस्टिंक्शन। और हमें, हम फ्री हैं बेसिकली, हम इस मुक्त हैं, ये बात कहने के लिए एकदम हम लोग फ्री हैं कि रेलवेज के द्वारा ही ये जो डिफरेंसेज है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। एबोलिश का मतलब समाप्त होना, ये वर्ड हमने देखा था। एंड ओपियम ईटर, ओपियम का मतलब अफीम खाने वाला, एक नशा करने वाला, आर्ग्यू, वो तर्क कर सकता है, द एडवांटेज ऑफ ओपियम ईटिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द एविल ऑफ द ओपियम हैबिट आफ्टर हैविंग इटन इट। मतलब उसने कब जाना कि ओपियम खाने से नुकसान है, कब जाना, जब वो उसको खा लिया,
Okay, I would ask you to consider well what I had said on the railways. So ये भी लेखक कहना है कि मैं आपको चाहता हूं आप सोचें इस बात पे कि रेलवेज के बारे में भी मैंने कहा, मतलब रेलवेज ने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंसेस को पता बताया, लोगों के बीच में लगा, महसूस हुआ, पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे तो क्या था कि उनको डिफरेंसेस मालूम नहीं थी, फिर जब डिफरेंसेस रेलवे में ट्रैवल किए जब वो, तो उनको डिफरेंसेस मालूम चली कि भाषा अलग है, पहनावा अलग है, बातचीत अलग है, खान पान अलग है, लेकिन साथ में जब ये चलते रहे रेलवेज के थ्रू ही, तो उनको क्या हुआ, वो फिर एक सामंजस्य उन्होंने बैठा लिया और उस एक होने लगे एक तरह से। बहुत बढ़िया पैसेज है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया, ओके इंडिया क्या है भाई, इंडिया हैज नेवर बीन वन नेशन, गलत है ये, हैज बीन एन एग्रीगेट ऑफ सेवरल नेशन, ये भी गलत है, हैज ऑलवेज बीन वन नेशन अलोंग विद डिफरेंसेस, जी हाँ डिफरेंसेस के साथ हम एक रहे हैं, यही बात ऑथर कह रहे हैं, कहाँ पे, ये देखिए, बिकॉज वी आर वन नेशन वी हैड नो डिफरेंसेस, वो बोल रहा है मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि हमारा हम एक है तो इसका मतलब डिफरेंसेस नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी इन्फरेंस है, आपको मतलब निकालने आना चाहिए, रीडिंग बिटवीन द लाइन आना चाहिए कि वी हैड नो डिफरेंसेज, ऐसी बात नहीं है कि वी हैड डिफरेंसेज, यही बात है कि हमारे साथ डिफरेंस तो है लेकिन फिर भी हम वन नेशन है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया स्टैब्लिश पिलग्रिमेज इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, भारत के जो साधु संत थे, महान साधु संत, उन्होंने क्यों डिफरेंट जो पिलग्रिमेजेज है वो डिफरेंट कॉर्नर में स्टैब्लिश किया, तो यदि आप गौर करें क्यों किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, इंडिया वॉज अनडिवाइडेड एंड लैंड, अनडिवाइडेड लैंड सो मेड बाय नेचर, क्यों किया, क्यों किया देखिए यहाँ पे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू पुश पीपल टू ट्रेवल, नहीं गलत है ये, बिकॉज दे कुड ऑब्जर्व द अंडरलाइन यूनिटी ऑफ द कंट्री एज मेड बाय नेचर, हाँ ये जो आंसर है यही सही है, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैड ट्रैवल्ड, नो, बिकॉज दे वांटेड पीपल टू बी रिलीजियस एवरीवेयर, नो, सो ये जो रीजन है, ये जो तीर्थ स्थान चार जगह बनाने का, यहाँ पे उसका पीछे ये है कि बट दे सॉ दैट इंडिया वॉज वन अनडिवाइडेड लैंड, प्रकृति ने ही बनाया है उसको अनडिवाइडेड, तो हम कौन होते हैं, तो क्यों नहीं ये जो तीर्थ स्थान है वो हर जगह रहे और पूरी कंट्री एक रहे। नेक्स्ट, इन द पैसेज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेलवेज इज, ओके रेलवेज के प्रति ऑथर का क्या कहना है, आपने यदि गौर किया कि ये चार ऑप्शन है एटीट्यूड का, एटीट्यूड का इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है कि किस तरह का एक ऑथर का एटीट्यूड हो सकता है। व्हाट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब यदि किसी चीज के बारे में आप केयरफुल और एनालिसिस इवेल्युएशन करते हैं, आकलन करते हैं। ओके, सिंपैथेटिक का मतलब है आप यदि थोड़ा सा ममता दया दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, महसूस करते हैं। इनडिफरेंट और अपैथेटिक का मतलब होता है बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब न्यूट्रल टाइप का, ओके इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली, इनडिफरेंट उदासीन। सो यहाँ पे आप गौर करें, पहले रेलवे का ऑथर ने फायदा बताया है, ओके नहीं फायदा नहीं बताया, पहले इन्होंने नुकसान बताया, क्या हुआ कि इट वॉज कंसीडर, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इट वॉज आफ्टर द एडवेंट ऑफ रेलवे वी बिगेन टू बिलीव इन डिस्टिंक्शन, पहले क्या हुआ हम लोग अंतर जानने लगे, पहले अंतर नहीं मालूम था लेकिन रेलवे में ट्रैवल करने के बाद वी बिगिन टू बिलीव इन डिस्टिंक्शन, कुछ अंतर है, फिर बाद में क्या हुआ, वी बिगिन टू एबॉलिश दोज डिस्टिंक्शन, बाद में समाप्त करने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पहले कि लेखक ने क्रिटिकल व्यू एटीट्यूड दिखाया इस पैसेज में, ऑप्शन ए। Next, what does the author mean when he says that those hearts were aglow with righteousness had the Ganges in their own home? इसका मतलब ये है, यहाँ पे यदि आप गौर करें, those whose hearts are aglow with righteousness had the Ganges in their own home. बेसिकली सेंस ये है कि जिसका काम अच्छा है, जिसका दिल अच्छा है, वो क्या है, उसके घर में ही सब कुछ है, उसको किसी भी रिचुअल की जरूरत नहीं है, किसी भी धर्म संस्कार की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई कर्म कांड या तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। सो द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी रिचुअल, हृदय की जो शुद्धता है वो किसी भी रिचुअल से बड़ी है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, वन नीड नॉट विजिट द गंगा टू टेक होली बाथ, नहीं, द गंगेज हैज बीन पॉल्यूटेड, नहीं, वन शुड टेक अ होली डीप इन द गंगेज, नो ऐसा नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द पैराग्राफ इज रिटेन इन, अब पैराग्राफ के बारे में स्टाइल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे चार स्टाइल, डायलॉजिक, डाया का मतलब होता है दो, लॉजिक का मतलब तर्क। सो जब कंटिन्यूअस कोई डायलॉग करता है और इंक्लूड्स होता है उसमें क्या, इंटरेक्शन और प्रीवियस इंफॉर्मेशन, नॉर्मली हम लोग डायलॉग करते हैं दोस्तों से तो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इस तरह की जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं डायलॉजिक स्टाइल एक तरह से। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है, आपने सुना होगा प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें बताया जाता है टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू,
सीधा ऑथर बताता है कि उनको क्या करना चाहिए। इस तरह का कोई बात इसमें कहा नहीं गया है, ये भी बात नहीं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है भाई डिस्क्रिप्शन, विवरण देना, ये भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे एनालिटिकल स्टाइल है कि केयरफुल और एनालिटिकल एनालिसिस किया गया है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। एक ब्लैंक स्पेस है एंड वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। जो बेहतर लगे उसको आप चूज कीजिए और आंसर को मार्क कीजिए। सो फॉरेस्ट प्रिवेंट इरोजन, किस तरह के? लीन, डेंस, स्पार्स, टाइडी। बेसिकली डेंस जो फॉरेस्ट है, ये डेंस है, घना जंगल जो है वो क्या करता है, वो इरोजन, मिट्टी के कटने को रोकता है। लीन का मतलब होता है बेंड, बेंड मतलब झुका हुआ बेसिकली, या एक ऊपर से नीचे स्लोप टाइप का, तो ये लीन से कुछ होगा नहीं। स्पायर्स का मतलब बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, कम, और टाइडी माने नीट। सो डेंस यहाँ पे माने एग्जैक्ट वर्ड है कि घने जंगल से ही इरोजन रुक सकता है। Next, 3 people were arrested and an illegal arms unit was what? Busted. आपने सुना भी होगा कि कई सारे ना पुलिस रेड में इतनी चीजें बस्ट हुई। सो यही बोल रहा है 3 लोग पकड़े गए और एन इलीगल, ये जो है गैर कानूनी आर्म्स, हथियार का जो यूनिट है भाई बनाया जा रहा था, वहां पे क्या हुआ? बस्ट हुआ, रिवील हुआ, बस्ट हुआ बेसिकली। अब बस्ट का मतलब होता है बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, यदि पकड़ा जाना। कैसे? आप गलत करते समय जब पकड़े जाते हैं उसको बोलते हैं बस्टेड। ओके, सो ये जो रेड तो हो गई, रेड में पकड़ा गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिस्कवर्ड भी बहुत क्लोज है, लेकिन डिस्कवर्ड का मतलब होता है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और ड्यूरिंग अ सर्च। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड, लेकिन बस्ट का जो है वो गलत सेंस में यूज होता है कि वहां पर भी पकड़े जाना। तो यहाँ पे रैकेट जो बस्ट होता है, आपने सुना है रेड में ये सारी चीजें बस्ट हुई। डी इज करेक्ट ऑप्शन। रिवील का मतलब डिस्क्लोज होना, सर्च का मतलब ढूंढना। ओके, नेक्स्ट, अ विमेन गॉट इनटू द कार एंड, एक औरत क्या हुई? कार में गई, और उसके बाद क्या किया उसने भाई? ड्रोव ऑफ। ड्रोव ऑफ, ये थोड़ा सा ऑप्शन बहुत क्लोज है, ध्यान रखेंगे। राइड, ओके, और ये ड्राइव। ओके, ये जो है ड्राइव ऑफ और राइड इन, राइड इन जो बेसिकली 2 व्हीलर्स के लिए नॉर्मली यूज होता है, और ड्राइव जो है वो 4 व्हीलर के लिए। सो ड्राइव का मतलब क्या हुआ भाई? किसी जगह को छोड़ देना। तो औरत उसमें कार में गई एंड सी ड्रोव अप, और उस चली गई वहां से ड्राइव करके। ब्रोक डाउन का मतलब होता है बिकम डिस्ट्रेस, आपने सुना होगा ही, है ना, परेशान होना। और ड्राइव इन जो है या ड्रोव इन एक फैसिलिटी है इस मॉल में। ड्राइव इन फैसिलिटी मतलब क्या है कि आप बिना कार को छोड़े ही भाई जा सकते हैं, मतलब आप कार में बैठ के ही जा सकते हैं, ड्राइव इन फैसिलिटी। ओके, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द लेक्चर वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत बोरिंग था भाई, साहब सो रहे हैं। इनफैक्ट आई वॉट? डोज्ड ऑफ, सो गया भाई, हल्की सी नींद ले लिया। ओके, इन द मिडिल ऑफ इट। और बस बहुत लोग करते हैं, ट्रेनिंग में भी लोग करते हैं। तो शोड ऑफ जो वर्ड है, शोड ऑफ मैंने सुना भी होगा आपने कि दिखाना, डिंग हाँकना, अपनी योग्यता को, अपने सामानों को, अपनी कामों को। पुट ऑफ का मतलब भाई स्थगित कर देना। मेक समवन डिसलाइक और समथिंग और समवन। ओके, किसी को आप क्या करते हैं, जैसे आप ऐसा कर देते हैं कि वो उसको पसंद कर, माने नापसंद कर दे। जैसे बोलते हैं ना यार, उसका जो स्मेल है मुझे, मेरे माइंड को पुट ऑफ कर देता है। ओके, माने घृणा दे देता है, मैंने पसंद नहीं आता। तो उसका नेगेटिव सेंस में है, नफरत के सेंस में है, नापसंदी के सेंस में। प्लग्ड ऑफ, आप स्विच निकाल देते हैं, प्लग निकाल देते हैं, प्लग्ड ऑफ। सो डोज्ड ऑफ यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट, द कॉप्स क्या होगा? मर्डर बाय किन, भाई सस्पेक्ट करेंगे, अफोर्ड थोड़े ही करेंगे, मैनेज भी नहीं करेंगे, एडमिनिस्टर भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सस्पेक्ट करेंगे। ओके, ऑप्शन है। So viewers, I hope that you like this video of NDA 1 paper, full solution of English paper. And if you have liked this video, then please subscribe my channel. And if you've already subscribed, then like, share and comment to give me more energy to make more such wonderful videos for you. Thank you so much for watching. Best wishes. Get selected. Jai Hind.